Okay, a very good morning to all of you. Today we are going to discuss about non-verbal communication, and we will discuss this important topic in three important segment. तीन parts में इसे हम पढ़ेंगे, है ना? In the first segment we will discuss regarding the meaning of non-verbal communication. इसका मतलब होता क्या है? Basically we will discuss the concept with the help of examples. है ना? Example के द्वारा समझा जाएगा कि इसका मतलब होता क्या है. In the second segment, we will discuss regarding the nature and characteristics of non-verbal communication, and we will discuss each and important each and all the points with the help of certain lively examples. Examples के द्वारा देखा जाएगा कि what is the nature and characteristics of non-verbal communication. And in the final segment, that is third segment, we will discuss regarding two important non-verbal communications, and that is audio communication and visual communication. We will look after that what is the meaning of audio communication, what is the meaning of visual communication, and what are the advantages of both these communications. So we are going to start this important session. Now, before starting the session, let me ask important questions from all of you. Now, tell me what do you mean by non-verbal communication? आप लोग क्या समझते हो? What is non-verbal communication? So the kind of communication in which words are not used. The kind of communication in which words are not used, then it will be regarded as non-verbal communication. Okay. Tell me what is the meaning of audio communication? So Okay. when You have listen. You have very much clarified that non-verbal communication basically are those communications where words are not used. Very good. But there are large types of non-verbal communication. Then what will be the specific definition for audio, and what will be the specific definition for visual communication? What is audio communication? Tell me. for audio communication, it means that words are not used. Some kind of sounds are used, like horn sound of an auto. Ambulance siren. Those Yes, signs and are used. Those signs are used where words are basically absent. Na? Okay. Tell me what is visual communication? so in which some expressions or actions are done, and through that communication takes place. In which expressions are done and communication takes place. Expressions are done, but words are absent. Okay. Abhiraj is saying that sign through visual aids. Okay. Through visual aids means she's talking about advertisements. Okay. Now I am going to start this session क्योंकि एक घंटे में मेरा क्लास हो ही नहीं पाता है ये वाला. ठीक है, तो मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ कि होता क्या है. ठीक है, एक एक करके स्लाइड शेयर करता हूँ और फिर मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा इसके बारे में. ठीक है, मैं प्रॉपर समय दूंगा सबको पूछने का. अगर किसी को डाउट होगा बीच में इंटरप्ट मत करना बस. हाँ, ये सबको दिख रहा है ना? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now, what is the meaning of non-verbal communication? Basically, non-verbal communication is communication transmitted without the use of words. Why we are defining this particular thing in such way? Because the basis of segmentation of our was words, whether words are used or not. हम लोगों ने वहां पे methods of communication में किस basis पे दोनों को divide किया था? Whether words are used or not. That means if words are used, then it will be regarded as verbal communication. And so non-verbal communication are all those communications where communication is transmitted without the using of words or without the use of words. जहां पे शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है और उसके माध्यम से मतलब बिना शब्दों का प्रयोग करते हुए अगर communication को transmit किया जा रहा है तो then all those communications will be regarded as non-verbal communication. Now, how the communication is transmitted if words are not used? Basically, they are actually transmits the implied meaning. That means in non-verbal communication, communications are actually transmitted by one person to another in an implied manner. That means implied meaning is transferred from one person to another and not the words are transferred. शब्दों का प्रयोग से यहाँ पे communication transmit नहीं किया जा रहा है. Basically जो transmit किया जा रहा है with the help of implied meaning. That means इसको हिंदी में अंतर्निहित
मतलब क्या कहना चाह रहे हो, उसका उसका एक्चुअली में एक्सप्रेशंस के द्वारा वो कहना क्या चाह रहे हैं, इंप्लाइड मीनिंग से समझाया जाता है। ठीक है, इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इन्वर्टेड कोमा में एक लाइन लिखा है, इसको ध्यान से आप लोग पढ़िए। व्हाट इज सेड इज नॉट व्हाट इज कम्युनिकेटेड। What is said is not what is communicated. Now, who is going to explain this particular line? What is said is not what is communicated. कोई मुझे explain करके बताए कि what is the exact meaning of this particular line? In this line, what I am trying to say to all of you. मैं आप लोग को क्या समझाना चाह रहा हूँ इस लाइन के द्वारा? What is said is not what is communicated. What is the exact meaning of this line? Sir, it means that whatever we say is not actually what is communicated. It means that whatever we say, ये जरूरी नहीं है कि सामने वाले को वो चीज समझ में आ गई हो। अच्छा, जो हमने कहा वो सामने वाले को समझ में नहीं आया। अच्छा ठीक है, और कोई? इंटरप्रिटेशन डिफरेंट होगा इसमें। नहीं, फिर से बोलो, मैं आपकी आवाज नहीं आई। इंटरप्रिटेशन डिफरेंट होगा सर इसमें। फॉर एग्जाम्पल? सर जैसे कहना कुछ चाह रहे हैं और उसके मतलब उसके मीनिंग कुछ और इंटरप्रेट कर रहा है सामने वाला। अच्छा, तो द सेम एक्सप्लेनेशन वाज गिवन बाय द प्रीवियस गर्ल। जो भी लड़की थी उसने भी यही चीज कहा था। ठीक है, एनीबडी एल्स हु इज गोइंग टू डिफाइन दिस पर्टिकुलर लाइन? व्हाट इज सेड इज नॉट व्हाट इज कम्युनिकेटेड। जो कहना चाह रहा है वो कह नहीं रहा है, मतलब क्या जो कहना चाह रहा है वो कह नहीं रहा है? जो कहना चाह, आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर। जो कहना चाहता है वो सर नेटवर्क प्रॉब्लम है। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, मेरी बात को सुनो। ये जिसने भी इंटरप्रिटेशन जिन्होंने भी किया है, ये बिल्कुल एग्जैक्ट इंटरप्रिटेशन नहीं है। देखिए इसका मतलब क्या है, ध्यान से समझिए। नाउ अंडरस्टैंड दिस इंपॉर्टेंट लाइन इन टू डिफरेंट पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट इज व्हाट इज सेड, सेकेंड पार्ट इज नॉट व्हाट इज कम्युनिकेटेड। देखो इसमें कहना क्या चाह रहा है। देखो सेड, द वर्ड सेड बेसिकली मीन्स इट इज सेड विथ द हेल्प ऑफ वर्ड्स। कहा गया, दैट क्लियरली मीन्स इट हैज बीन सेड विथ द हेल्प ऑफ वर्ड्स। यहां पे क्या किया गया है, जो कहा गया है वो शब्दों के द्वारा कहा गया है। ठीक है, सेड दैट मीन्स ही हैज, दैट पर्टिकुलर पर्सन हैज सेड समथिंग, उसने कुछ कहा, बट इट इज नॉट व्हाट इज कम्युनिकेटेड। जो उसने कहा वही उसने कम्युनिकेट नहीं किया उसी बंदे ने। देखो आप लोग का क्या कहना है कि जो उसने कहा दूसरे को वो वही चीज समझ में नहीं आई। नो, दैट पर्सन हु इज सेइंग द वर्ड्स, he is actually not transmitting or communicating that particular thing. What he is saying is not what he is trying to what he is communicating. जो वो कह रहा है वही कम्युनिकेट नहीं कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल समझ देता हूं तो थोड़ा क्लियर होगा। देखो सपोज मेरे घर पे या मान लो मुझसे मिलने एक दो लोग आए, ठीक है, और मैंने उनको देखते ही मैंने अपने कुछ 4-5 दोस्तों को बुलाया और मैंने उनको कहा, अपने दोस्तों को, कि भैया सपोज मिस्टर ए मुझसे आए थे मिलने, मैंने अपने दोस्तों को बोला कि मिस्टर ए को ले जाइए, ठीक है, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, और इनकी खूब खातिरदारी करिए। दिस वॉज माई एक्सप्रेशन, खूब खातिरदारी करिए। दैट मीन्स व्हाट इज सेड, मैंने क्या कहा, खातिरदारी करिए, एंड दैट पर्टिकुलर वर्ड मीन्स इट इज अ पॉजिटिव मीनिंग। खातिरदारी करना यानी ये एक पॉजिटिव सेंस है। बट व्हाट इज कम्युनिकेटेड, दिस पर्टिकुलर थिंग हैज बीन कम्युनिकेटेड। व्हाट माय फ्रेंड्स आर गोइंग टू डू विथ मिस्टर ए, दे आर गोइंग टू बीट हिम। ठीक है, तो व्हाट इज सेड इज नॉट व्हाट इज कम्युनिकेटेड। जो कहा गया वही कम्युनिकेट नहीं किया गया। ठीक है, यानी शब्दों के द्वारा कहा कुछ और गया था, बट एक्चुअल कम्युनिकेशन वाज डिफरेंट। एक्चुअल मीनिंग और एक्चुअल कम्युनिकेशन वाज एंटायरली डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बताया ना कि मिस्टर ए आया, मैंने अपने दोस्तों को कहा कि इनको ले जाइए और खूब खातिरदारी करिए। दैट मीन्स इसको देखो, अब आगे अगले उसमें पढ़ो। देखो व्हाई, बिकॉज वर्ड्स कैरी द स्टेटेड मीनिंग्स। शब्दों का मतलब क्या होता है, सिंपली स्टेटेड मीनिंग्स। दैट मीन्स द वर्ड्स आर वेरी मच क्लियर। जैसे मैंने यहां पे वर्ड्स क्या प्रयोग किया, खातिरदारी। खातिरदारी का सीधा सीधा मतलब क्या होता है, पॉजिटिव सेंस, ले जाइए, मेहमान नवाजी करिए। बट नॉन वर्बल एलिमेंट ट्रांसमिट द इंप्लाइड मीनिंग, व्हाट ही इज एक्चुअली ट्राइंग टू से।
That is stated by non-verbal element. And what was my actual reaction? खातिरदारी करिए. This was my actual reaction. इनकी खातिरदारी करिए. ठीक है, खातिरदारी यहां और इस एक्शन के साथ मतलब कि दे आर गोइंग टू बीट हिम. वो पॉजिटिव सेंस में बिल्कुल मैंने नहीं कहा. दैट मीन्स व्हाट इज सेड, जो कहा गया इज नॉट व्हाट इज कम्युनिकेटेड, वही कम्युनिकेट नहीं किया गया. दैट मीन्स द मीनिंग वॉज डिफरेंट, द मीनिंग वॉज एंटायरली डिफरेंट. व्हाट वॉज सेड, द मीनिंग वॉज एंटायरली डिफरेंट, द सेम वॉज नॉट कम्युनिकेटेड. एक और एग्जाम्पल ले लो, जो आप लोग अगर मूवीज देखते होंगे तो उसमें अक्सर ये एग्जाम्पल आता है. जैसे मान लो किसी चाय के दुकान वाले, सॉरी किसी बड़े दुकान पे, ठीक है, या किसी भी दुकान पे कुछ ग्राहक आए, ठीक है, वो बैठे हुए हैं और जब जा रहे हैं तो दुकान वाले ने कहा कि रुकिए रुकिए चाय पी के चले जाइए. ठीक है, उसके बाद उसने चाय वाले को इस टाइप से साइन किया. 2 लोग हैं मान लो, तो कहा 2 चाय लाना, 2 चाय लाना. दैट मीन्स ही इज एक्चुअली सेइंग 2 चाय लाना. वो तो कह रहा है कि 2 चाय लाओ, बट एक्चुअली व्हाट इज ट्रांसमिटिंग, ही इज व्हाट इज द इंप्लाइड मीनिंग हियर, 2 नो. ही इज शेकिंग हिज हैंड, वो सीधा ये कर रहा है, नो डोंट सप्लाई टी, सीधा सीधा. दैट मीन्स व्हाट he was saying, the same was not communicating. That person was not communicating the same meaning. जो वो कह रहा है शब्दों के द्वारा, वो एक्चुअली में वही मैसेज को ट्रांसमिट नहीं कर रहा है. एंड दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, बिकॉज वर्ड्स कैरी द स्टेटेड मीनिंग. शब्दों का जो भी आप प्रयोग करेंगे उसका स्टेटेड मीनिंग है, उसकी एक फिक्स मीनिंग है. ठीक है, उसका मतलब क्या है. बट व्हेन द वर्ड्स दे आर implied, when they are joined with the non-verbal elements, then the actual meaning becomes clear. जब शब्दों को हम लोग implied meaning से यानी non-verbal elements के साथ जोड़ देते हैं तो actual message पता चलता है कि what was the actual message, what he was actually trying to say. ठीक है, देखो इसी में आगे क्या कहा गया है. When the stated meaning, that means words, when the stated meaning and implied meaning are put together, जब शब्दों को और implied meaning को जिस तरीके से कहा गया दोनों को जोड़ दिया जाएगा, when they are put together we get the actual or total meaning, then only the actual meaning becomes clear. ठीक है, तो what was said with the help of words, the same meaning was not communicated or the same communication was not transmitted to the second or third party. जो शब्दों के द्वारा कहा गया वही एक्चुअली में कम्युनिकेट नहीं किया गया. दैट मीन्स the actual message was entirely different and it becomes clear only when non-verbal elements were joined with the stated meaning. ठीक है, इस पर्टिकुलर चीज में किसी को कोई डाउट है तो मुझसे अभी समझ ले, या किसी को कोई डिस्कशन करना हो इस पर्टिकुलर चीज पे, जल्दी करो. थोड़ा ये टॉपिक लंबा है ना, तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी चलूंगा. इसमें किसी को कोई डाउट है? नो सर. चलो, वेरी गुड. ये आप लोग ध्यान रखना, वर्ड्स कैरी स्टेटेड मीनिंग. शब्दों का जो प्रयोग किया जाता है उनका स्टेटेड मीनिंग होता है, उनकी एक एक्चुअल मीनिंग होती है. बट नॉन वर्बल एलिमेंट्स बेसिकली ट्रांसमिट द इम्प्लाइड मीनिंग. अंतर्निहित जो शब्द होते हैं, अंतर्निहित मीनिंग कौन बताता है? non-verbal element. So actual meaning of any particular sentence becomes clear when words are combined together or put together with implied meaning. जब शब्दों को हम लोग एक्शंस के साथ जोड़ के बोलते हैं तो एक्चुअल मीनिंग क्लियर होता है. ठीक है, 2 चाय लाना, तो बोल तो रहा है 2 चाय लाना, बट एक्चुअली व्हाट इज द मैसेज व्हिच ही इज ट्रांसमिटिंग? नो डोंट सेंड टी. वैसे ही उसमें वो क्या कर रहा था कि ले जाओ और खातिरदारी करो. खातिरदारी वाज पॉजिटिव वर्ड, it is always used in positive word, but the message was entirely different. ठीक है, तो ये यहाँ पे बताता है. अब देखो इसी को एक फेमस एक्सपर्ट ने क्या कहा है. अकॉर्डिंग टू रे बर्डविसल, इस चीज को हमेशा याद रखना, अकॉर्डिंग टू रे बर्डविसल, इन अ फेस टू फेस इंटरेक्शन स्पोकन वर्ड्स अकाउंट फॉर ओनली 35% while non-verbal elements carry 65% weight. That means according to Ray Birdwhistell, the weight or the importance of non-verbal communication in a face-to-face communication is very very high as compared to the spoken words. शब्दों के कंपैरिजन में non-verbal elements या इनका जिस तरीके से भी आप प्रयोग कर रहे हो, non-verbal elements का weight ज्यादा होता है. Although he has given his example or he given his theory regarding only face-to-face interaction.
ठीक है, केवल ये फेस टू फेस इंटरेक्शन में कह रहे हैं कि जब दो लोग फेस टू फेस इंटरेक्शन या दो से ज्यादा लोग फेस टू फेस इंटरेक्शन करते हैं तो उनके द्वारा कहे गए शब्दों का वजन, ठीक है, यानी उनकी वैल्यू 35% ही होता है, बट नॉन वर्बल एलिमेंट यानी जिस तरीके से वो कहते हैं उसका वेट 65% होता है, यानी उसका महत्व ज्यादा होता है. सो अकॉर्डिंग टू रेड वर्ड विसल, द नॉन वर्बल एलिमेंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज कंपेयर टू द वर्बल कम्युनिकेशंस और द स्पोकन वर्ड्स. उसके मुकाबले इसकी बहुत ज्यादा होती है. ठीक है, अब इसका देखो ये मतलब नहीं है कि सारे एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि 65 और 35 का ही रेशियो होता है. लार्ज नंबर ऑफ एक्सपर्ट्स आर देयर, दे हैव गिवन देयर डिफरेंट थ्योरी, सबकी अपनी अपनी थ्योरी है, बट because we are studying about non-verbal elements, and so I am giving the example of that particular person who has given the highest weight to non-verbal element. इन्होंने ही highest weight दिया है और उनका मानना है कि 65% weight होता है, यानी सबसे ज्यादा अहमियत non-verbal element की ही होती है. Now we will discuss regarding the important characteristics or features of non-verbal communication. Tell me what are the important characteristics? कुछ आप लोग बताइए कि क्या फीचर्स होते हैं, उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे. What are the important features of non-verbal elements? Non-verbal communication. Communication through body language. Easy to express. Easy to express. It is easy to express. Whether you are opinion of this particular thing that it is easy to express, आप कम से कम ये मानती हैं कि ये easy to express होता है, or you are simply saying this because it has been written in some book? No, so I think it's my opinion. अच्छा, ओके, वेरी गुड. देखो ये चीज हमेशा याद रखना, वी आर डीलिंग विथ ह्यूमैनिटीज, वी आर नॉट डीलिंग विथ साइंस. हम लोग साइंस नहीं पढ़ते हैं जहां हर चीज बिल्कुल क्लियर होता है, एग्जैक्ट मीनिंग में और एब्सोल्यूट टर्म्स में होता है ना. 2+2 C+O2, that the answer will be 100% same thing again and again. Basically we are dealing with humanities where we can express our own opinions. जैसे इसी में अगर कहे हैं कि according to Ray Birdwhistell these are the weights, I can disagree with this particular statement. मैं सीधा सीधा डिसएग्री हो सकता हूं. क्यों? 100 लोगों के ऊपर मान लो मैं फेस टू फेस इंटरेक्शन का एक क्वेश्चनियर कर दूंगा और मैं सबसे पूछूंगा कि आपके हिसाब से कितना वेट देना चाहिए. ठीक है, और हो सकता है कि वो परसेंटेज इससे डिफर कर जाए. ठीक है, तो हमारे पास वी हैव लार्ज नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस आवर ओन एक्सप्रेशंस इन एनी पर्टिकुलर स्टेटमेंट. ठीक है, सब स्टेटमेंट में हम लोग अपना एक्सप्रेशंस बिल्कुल दे सकते हैं और बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, हमारे हिसाब से सही है. ठीक है, चलिए सम इंपॉर्टेंट फीचर्स दिखा जाए. व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फीचर्स? नंबर 1, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. नंबर 1 is it is often a spontaneous process. That means most of the experts are of the opinion that non-verbal communications are basically a spontaneous process. स्वाभाविक प्रोसेस होता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो जैसे आप ही लोग अभी हो, ठीक है, और मैंने कहा कि 2+2 4 होता है. ठीक है, तो आप लोग एक्सप्रेशन में क्या दोगे? यस सर. यस नहीं बोलोगे, ऐसे ऐसे सीधे सीधे, या कोई स्माइल करेगा कि ये कौन सा क्वेश्चन है, इतना बेसिक क्वेश्चन है. दैट मीन्स योर रिएक्शन और योर एक्सप्रेशन इज स्पॉन्टेनियस. वहां पे क्या स्वाभाविक है. जैसे क्लास में अगर मैंने कोई क्वेश्चन पूछा और अधिकतर लोगों को उसका आंसर पता है, ठीक है, इस टाइप से, ठीक है, मैंने उसी सेम वही आंसर बोला, ठीक है, तो अधिकतर लोग यस में ये करेंगे. यस, विदाउट सेइंग अ वर्ड दे आर सिंपली गोइंग टू शेक देयर हेड. वो यस में या नो में, मान लो आप लोग मेरी बात से सहमत नहीं हो तो सीधा योर एक्सप्रेशन विल बी लाइक दिस. दैट मीन्स इट इज स्पॉन्टेनियस. भले ही मैंने आपसे पूछा या नहीं पूछा, बट यू आर गोइंग टू रिप्लाई इन दिस पर्टिकुलर मैनर. ठीक है, मैंने कोई लाइन बोला, जैसे हिटलर वॉज अ वेरी गुड पर्सन, मैंने ये कहा, तो अधिकतर लोग ये कर देंगे, नो 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 सर, वी डू नॉट एग्री विथ योर. You are not going to tell these particular words, but your expression will be like this. No, that means it is spontaneous process. Most of the non-verbal communication are spontaneous in nature. अपने आप स्वाभाविक हो जाता है, हम लोग अपनी एक्सप्रेशंस को स्वाभाविक रूप से दिखा देते हैं. ठीक है, now your expression will reveal the actual matter. जैसे मैंने कहा, मेरा स्टेटमेंट क्या था? हिटलर इज अ वेरी गुड और हिटलर वाज अ वेरी गुड पर्सन. then your expression will be
No, that means your actual expression, or you are revealing your actual thoughts, what you are feeling about that particular person. That means in your views that particular person is not a good person, or he was not a good person. ठीक है, तो आपका spontaneous reaction क्या होगा? No, that means you disagree from my views. आप मेरी व्यूज से सीधा सीधा डिसएग्री हो रहे हो. तो ये जो डिसएग्री का रिएक्शन है, आप लोग कुछ मुझे बोल नहीं रहे हो, it is simply spontaneous. You are simply shaking your head in a negative manner or in a negative response. ठीक है, नेक्स्ट तीन कर लेते हैं, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है, नाउ नेक्स्ट, नॉन वर्बल एंड वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यूजुअली कोएग्जिस्ट. एक्चुअली ये कहा जाता है कि वन ऑफ द मेजर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यूजुअली एग्जिस्ट टुगेदर. वो दोनों एक साथ होते हैं. व्हाई? फॉर एग्जाम्पल, जैसे फॉर एग्जाम्पल सपोज यू आर राइडिंग अ बाइक और स्कूटी. आप लोग बाइक या स्कूटी से जा रहे हो और आगे रेड लाइट सिग्नल है. ठीक है, रेड लाइट सिग्नल है. ठीक है, तो उसका सीधा सीधा वर्बल कम्युनिकेशन, व्हाट that particular thing is transmitting to you, what message or what communication is transmitted by that particular red light to you, stop. That means it is basically a non-verbal communication. Red light is a non-verbal communication. वो केवल और केवल क्या दे रहा है आपको, एक क्या दे रहा है, वो कहीं वर्ड्स के द्वारा आपको कोई मैसेज नहीं कम्युनिकेट कर रहा है, साइन दे रहा है. हाँ, वो केवल साइन है, वो केवल इंप्लाइड मीनिंग है. बट व्हाट इज एक्चुअली कम्युनिकेटेड टू यू, प्लीज स्टॉप. That means verbal and non-verbal communication coexist. जितने भी non-verbal communication होते हैं उसमें कुछ verbal message implied होता है, and that verbal message is communicated to you. जैसे आप non-verbal communications को देखते हैं या उसको ऑब्जर्व करते हैं तो एक verbal message आपके दिमाग में ऑटोमेटिक आ जाता है. That means verbal and non-verbal communication usually coexist. ये coexist होते हैं. जैसे कुछ मैं ये मैंने एक फोटो दे रखा है, इसका क्या मतलब है? एक सिगरेट है, उस पे क्रॉस बना हुआ है. ठीक है, ऐसा अगर कहीं पे आप साइन देखते हो तो उसका वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? नो स्मोकिंग. नो स्मोकिंग. हाँ, No smoking. प्लीज डू नॉट स्मोक. वो कहीं लिखा हुआ नहीं है. इट इज अ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. ठीक है, एक सिगरेट बना हुआ है और क्रॉस मार्क के साथ. आप लोग अक्सर देखोगे, हॉस्पिटल जाओ या कहीं पब्लिक प्लेस पे जाओ, स्कूल जाओ, ठीक है, पब्लिक के कोई भी प्लेस पे अगर जाओगे जहां पे पब्लिक गैदरिंग ज्यादा होती है, वहां पे बेसिकली दिस काइंड ऑफ साइंस आर यूज्ड. वहां लिखा नहीं होता है कि डू नॉट स्मोक. हो सकता है लिखा हुआ हो, बट ना भी लिखा हो, देन ऑल्सो द सेम मैसेज विल बी ट्रांसमिटेड टू यू. वहां पे आपको मैसेज यही ट्रांसमिट होगा, प्लीज डू नॉट स्मोक. ठीक है, सो इट इज सेड दैट वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यूजुअली को एग्जिस्ट. वो एक साथ ही होते हैं. नाउ थर्ड, नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस. Non-verbal communications are more reliable than verbal. ऐसा कहा जाता है कि non-verbal communications are more reliable than verbal communications. ये ज्यादा reliable होते हैं, इनकी reliability as compared to verbal communication is very very high. मतलब वो ज्यादा authentic होते हैं. Now, जो भी इसके साथ एग्री करता है, जो भी आप लोगों में से इस स्टेटमेंट के साथ एग्री करता है, नाउ गिव मी एन एग्जांपल. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आर मोर ऑथेंटिक और रिलायबल देन वर्बल कम्युनिकेशन. एक कैरेक्टरिस्टिक हमने ये लिखा है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ज्यादा ऑथेंटिक होता है वर्बल कम्युनिकेशन के मुकाबले. गिव मी एन एग्जांपल. कोई मुझे यहाँ पे एग्जांपल दे जल्दी, अगर आप इस स्टेटमेंट के सपोर्ट में हैं. जल्दी दो भाई एग्जांपल, इतने सारे बच्चे हो आप लोग. यदि सर यदि बस को रोकना होगा तो फिर मतलब आवाज से रोकने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा, लेकिन हाथ दिखाते हैं तो रुक जाता है. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. ट्रैफिक रूल्स भी हो सकता है सर. अच्छा, दैट मीन्स उस चीज से आप उसकी रिलायबिलिटी को चेक कर सकते हो कि हाँ ये ज्यादा रिलायबल है, कि चिल्लाने से अच्छा है कि हम हाथ दे के ऐसे रोकें. दैट इज मोर रिलायबल. यस सर. हाँ, उसको बिल्कुल चेक किया जा सकता है. सपोज मैं 10 बार आपको बस स्टैंड में मैं कहूं कि 10 बार 10 दिन खड़े रहो और 10 दिन आप चिल्ला के उसको बस को रोकने के लिए कहो. चिल्लाओ, डोंट यूज एनी काइंड ऑफ साइंस. हाथ उठ का साइन मत करो, चिल्लाओ. देन सी 10 दिनों में कितने दिन बस रुकी, प्लस नेक्स्ट 10 डेज में यू जस्ट गिव योर साइन. ठीक है, और फिर चेक करो कि उन 10 दिनों में कितनी बार बस रुकी. तो एक कुछ ऑब्जर्वेशन आएगा.
ठीक है, बिल्कुल सही है। इसका एक एग्जांपल मुझसे सुन लो। जैसे अगर जिनके घरों में छोटे छोटे बच्चे होंगे तो वो इस चीज को कभी चेक करके देखना। सपोज यू आर गोइंग टू अ पार्टी, आप लोग कहीं पार्टी में जा रहे हो, किसी मैरिज फंक्शन में जा रहे हो, ठीक है, छोटा बच्चा आपके साथ है, ठीक है, मान लो थोड़ा ठंड का मौसम है, आप लोगों ने घर पे या मम्मी ने जरूर, आपकी मम्मी या जो भी है, उन लोगों ने उस बच्चे को जरूर समझाया होगा कि डोंट ईट आइसक्रीम, जाना है तुमको तभी ले जाएंगे जब आइसक्रीम नहीं खाओगे, ठीक है। तो बच्चा तो वहां एग्री कर जाता है घर पे कि ठीक है मैं नहीं खाऊंगा, ठीक है। सपोज आप वहां पे गए पार्टी में, और वहां पे आइसक्रीम काउंटर के बगल से वो बच्चा गुजर रहा है, ठीक है। ऑल्दो वो ठीक है, वो आपके डर से बिल्कुल नहीं मांग रहा है, लेकिन जब आइसक्रीम काउंटर के बगल से गुजरता है, देन जस्ट चेक वन थिंग, उसको कहो कि प्लीज ओपन योर माउथ, उस बच्चे को कहो ओपन योर माउथ, और बच्चा जैसे ही ओपन करेगा अपनी माउथ को, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन विल बी ट्रांसमिटेड टू यू व्हाट ही इज एक्चुअली थिंकिंग अबाउट दैट आइसक्रीम। आप लोग वहां पे लार्ज स्लेवा देखोगे, वहां पे बहुत ज्यादा लार्ज उसके मुंह में जरूर होंगे, 100% होंगे। दैट मीन्स एक्चुअली ही वो बिल्कुल वो चाह रहा है कि मुझे आइसक्रीम मिले, बट ड्यू टू एनी फियर, ड्यू टू योर कमांड्स, ही इज नॉट आस्किंग फॉर दैट पर्टिकुलर आइसक्रीम। दैट मीन्स नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वो स्पॉन्टेनियस होता है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि सिंस दे आर स्पॉन्टेनियस सो दे आर रियल और दे आर मोर ऑथेंटिक एज कंपेयर टू वर्बल, उसके मुकाबले में ज्यादा ऑथेंटिक होता है, ठीक है। इसका एक और बहुत बड़ा रीजन है, देखो मैंने यहां लिखा हुआ है, इसको पढ़ लीजिए कि बेसिकली द साइकोलॉजिस्ट बिलीव नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस आर मोर रिलायबल। Large number of psychologists are there. They basically study the behavior of humans and large number of species. वो सबका क्या देखते हैं, बिहेवियर को चेक करते हैं, ठीक है। एंड मोस्ट ऑफ द साइकोलॉजिकल थ्योरीज, मोस्ट मीन्स मोर देन 90% और मोर देन 95% साइकोलॉजिकल थ्योरीज क्लियरली स्टेट्स दैट the non-verbal elements are more reliable, so they basically use their the non-verbal elements for their theories. In order to develop their theories they basically use non-verbal elements, ठीक है। साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, नॉन वर्बल एलिमेंट्स को यूज करते हैं किसी थ्योरी को बनाने में। फॉर एग्जाम्पल, एक मैं यहाँ बहुत ही लाइवली एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इसको समझना आप लोग। एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट हुआ करते थे, उनका नाम आप लोगों ने शायद सुना होगा, थॉर्नडाइक, ठीक है। उनकी एक बहुत स्पेशल वो थी, क्या नाम है, थ्योरी डेवलप की थी रिगार्डिंग थ्योरी ऑफ बिहेवियर, ठीक है। उन्होंने एक पिंजरे में क्या किया, एक बंदर को बंद कर दिया, ठीक है। और कुत्ते का भी जिक्र आता है कि एक पिंजरे में उन्होंने एक कुत्ते को बंद कर दिया, मान लो दोनों जानवरों को अलग अलग, ठीक है। और वो क्या करते थे कि एक बीप का साइन देते थे, सपोज जैसे रिंगिंग बेल, एक बेल को रिंग करते थे, और बेल जैसे ही रिंग होता था उसके 1 मिनट बाद बंदर के पिंजरे में एक केला गिरा देते थे, ठीक है। और कुत्ते के पिंजरे में क्या करते थे, मान लो कोई मटन का पीस या जो भी कुत्ते को पसंद है वो उसके उसमें गिरा देते थे। लेकिन ये बिहेवियर कैसे होता था, बेल लगने के तुरंत बाद, ठीक है। ये काम उन्होंने रोज लगातार महीने भर किया, बेल लगाते थे, केला डाल देते थे, और कुत्ते में क्या करते थे, एक हड्डी का टुकड़ा डाल देते थे, ठीक है। नाउ आफ्टर सर्टेन पीरियड, 1 महीने बाद उन्होंने क्या देखा कि जैसे ही वो बेल बजाते हैं, केला नहीं गिराया और कुत्ते में क्या हड्डी नहीं गिराया, बट they examined that when the mouth of that particular monkey was opened and the mouth of dog was open, large number of saliva was coming out from that particular thing, बहुत ज्यादा saliva गिर रहा था। why? because the behavior of those particular animals, वो भी तो भाई कहीं ना कहीं लॉजिकल बंदे हैं, तो वो जानते थे कि बीप बजा है तो उसके बाद मुझे भोजन मिलेगा। जिस दिन नहीं मिला, बट देयर एक्सपेक्टेशन वाज दैट दे आर गोइंग टू हैव सर्टेन फूड्स, कुछ फूड्स उनको मिलने वाला है, तो saliva was coming out of that means non-verbal communications are 100% or more reliable. You can say they are more reliable as compared to verbal communications, ठीक है। यहाँ देखो मैं आप लोग को एक वीडियो दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आप लोग देखना कि हाउ नॉन वर्बल एलिमेंट्स आर मोर रिलायबल, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूँ कि ऑफ 2 persons, वन इज हस्बैंड एंड अदर वन इज वाइफ। हस्बैंड क्या है, हस्बैंड जेल में बंद है एंड हिज वाइफ केम टू मीट हिम, वाइफ उससे मिलने आई है, ठीक है। एंड लुक द रिएक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर पर्सन, ठीक है, उस पर्टिकुलर पर्सन का रिएक्शन देखो, ठीक है। अच्छा इस वाले में एग्जांपल वो नहीं दिखाता हूँ, उस चीज को मैं अगले वाले में दिखाऊंगा। ये फर्स्ट 3 में किसी को कोई डाउट है तो मुझसे डिस्कस कर ले, फर्स्ट 3 पॉइंट्स में।
No, sir. No, sir. चलो ठीक है, No, नेक्स्ट sir. वन। नेक्स्ट, वेरी गुड, नहीं डाउट है तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस कैरीज कल्चरल वैल्यूज। ऐसा कहा जा रहा है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बेसिकली कैरीज कल्चरल वैल्यूज। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या, किस चीज को कैरी करते हैं, या वो अपने में समाये हुए हैं किस चीज को, कल्चरल वैल्यूज को। नाउ गिव मी एन एग्जांपल, कोई मुझे एग्जांपल दे कि सर हाउ नॉन। जैसे कोई भी हमारे घर पे आता है तो हमारे पेरेंट्स कहते हैं कि उनको नमस्ते करके विश कीजिए या कुछ भी, तो हाथ जोड़ना भी एक तरीके से वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहलाएगा, बट और कल्चरल वैल्यूज भी कहलाएंगी। यस, वेरी गुड। चलो इसी एग्जांपल को मैं थोड़ा इलेबोरेट कर देता हूँ, थोड़ा सा और इसको बड़ा कर देता हूँ, बट सेम एग्जांपल यही मैं भी देना चाह रहा हूँ। देखो होता क्या है, सपोज देयर आर टू बॉयज, मान लो दो लड़के हैं, बोथ आर स्टडिंग इन, दे आर स्टडिंग इन इंग्लैंड। मान लो इंग्लैंड में पढ़ रहे हैं, ठीक है, दो लड़के, ठीक है, लेकिन दोनों लड़के कहाँ के थे, वन वाज इंडियन, सेकंड वन वाज अमेरिकन। एक इंडियन है, एक अमेरिकन है। मान लो एक साल बाद वो लोग इंग्लैंड से आ रहे हैं न्यू दिल्ली एयरपोर्ट पे, ठीक है, और अमेरिकन भी वहां पे वेट कर रहा है, इंडियन भी वेट कर रहा है। जैसे ही वो लोग फ्लाइट से उतरेंगे, व्हाट विल बी द रिएक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर इंडियन बॉय? टेल मी, व्हाट विल बी द फर्स्ट रिएक्शन ऑफ इंडियन बॉय? He will touch the feet of his father. वो आते ही सबसे पहले अपने फादर के पैर छुएगा। दिस इज आवर कल्चर। जैसे अभी किसी ने एग्जांपल दिया ना कि घर पे लोग आते हैं तो हम लोग हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं, ठीक है, और बहुत कोई करीबी होता है तो पैर छूते हैं। बट सिंस द बॉय इज कमिंग आफ्टर अ वेरी लॉन्ग पीरियड, तो उसका रिएक्शन क्या होगा? ही विल टच द फीट ऑफ हिज फादर। अगर वो एक कल्चरल बॉय है, कल्चरल वैल्यूज की कदर करता है, तो इंडियन पर्सन विल टच द फीट ऑफ हिज फादर। दिस इज आवर कल्चर, दिस इज आवर प्रोसेस ऑफ ग्रीटिंग टू द एल्डर्स। बड़ों को एक मान सम्मान देने का हमारा ये एक अपना तरीका है। दिस इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। आई एम नॉट टचिंग हिज फिट और माई फादर फिट टू सी दैट वेदर हिज शूज इज इन अ राइट कंडीशन और नॉट। नो, आई एम टचिंग हिज फिट टू गिव माई ग्रीट्स टू माई फादर, टू पे माई रिगार्ड्स टू माई फादर। अपने फादर को रिगार्ड्स देने के लिए, एक आदर सत्कार देने के लिए मैंने पैर छुआ। दिस वॉज द, बट व्हाट अबाउट दैट पर्टिकुलर पर्सन, द सेकंड बॉय? वो आएगा, ही विल शेक हैंड्स विथ हिज फादर। वो आते ही ही विल शेक हैंड्स विथ हिज फादर, अपने पिताजी के साथ वो हाथ मिलाएगा। by shaking his hand, he is not disobeying or he is not basically, वो अपने फादर का बेइज्जती नहीं कर रहा है। he is giving his best regards to his father in his as per his culture। वो अपने कल्चर के हिसाब से अपने फादर को ग्रेट कर रहा है। दैट इज देयर कल्चर। वो अपने कल्चर में भी हाईएस्ट रिगार्ड अपने फादर को पे कर रहा है बाय शेकिंग दी हैंड्स। एंड और हम लोग क्या कर रहे हैं अपने कल्चर के हिसाब से? टचिंग फिट, ठीक है। अगर हम लोग उतरते ही अपने फादर से अगर हाथ मिलाने लगे तो सोचो, खासकर अगर जैसे इंग्लैंड से यार और मिलते ही हाथ फादर से मिलाने लगे, देन दिस इज नॉट आवर कल्चर। ये हमारे कल्चर का हिस्सा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। दिस विल बी अ नेगेटिव पॉइंट। वो कहीं ना कहीं नेगेटिव कल्चरल वैल्यूज के हिसाब से नेगेटिव थिंग हो जाएगा। बट when the American student is shaking hands with his father, he is paying his best regard to father. Both are non-verbal communication, both are different, but both are good as per their cultural values। वो अपने cultural values के हिसाब से बहुत सही कर रहा है, ठीक है। So non-verbal communications basically carry cultural values। वो differ करेगा person to person और community to community, it will be different, but the cultural values are carried by non-verbal communication, ठीक है। इसमें मैंने एग्जांपल वही दिया है, अमेरिकन्स बेसिकली शेक हैंड्स विद फ्रेंड्स रिलेटिव्स टू से हेलो, एंड इंडियंस बेसिकली टच फिट्स टू शो देयर रिगार्ड्स और से हेलो, ठीक है। टच फिट, तो आजकल तो खैर ये जमाना धीरे धीरे जा रहा है, अब लोग टच फिट नहीं कर रहे हैं, अब वो लोग शेक हैंड कर रहे हैं, जो बहुत सही चीज, सॉरी प्रणाम कर रहे हैं। तो वो भी अगर बहुत एल्डर्स हैं तो टचिंग फिट इज द बेस्ट रिगार्ड विच इज पेड एज पर आवर कल्चर। अपने कल्चर के हिसाब से दिस इज द बेस्ट थिंग, ठीक है। बट ठीक है, किसी भी तरीके से नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या करता है? कल्चरल वैल्यूज को कैरी करता है। नेक्स्ट वन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज नॉट सुटेबल फॉर कॉम्प्लेक्स और लेंथी मैसेजेस।
That means when lengthy messages are to be transmitted or to be communicated between two or more than two persons, then non-verbal communication is not suitable. अगर मैसेज की लेंथ ज्यादा बड़ी है, यानी जो मैसेज हमें ट्रांसमिट करना है वो बहुत बड़ा मैसेज है, देन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज नॉट सुटेबल. फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि अगर हमें किसी व्यक्ति ने पूछा कि बताइए बताइए भाई डीएवी का रास्ता क्या है, ठीक है, और मैं उनको क्या कर रहा हूं, दैट मीन्स मान लो मुझे टर्न बताना है, तो देयर आर लार्ज नंबर ऑफ साइंस, ही इज नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड एनीथिंग. But if the length of the message is very short, then only non-verbal communications are very good. Suppose मान लो कि हम लोग मान लो कि डीएवी के गेट के बाहर ही खड़े हैं, मेन गेट पे खड़े हैं, और किसी ने पूछा कि डीएवी कॉलेज किधर है, तो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि उधर चले जाओ या ऐसे चले जाओ, वी विल जस्ट गिव द डायरेक्शन, प्रॉपर डायरेक्शन, ऐसे दिखा दिए एंड ही विल जस्ट गो ऑन. ठीक है, तो मैसेज वहां पे शॉर्ट था तो non-verbal communication was very effective. But when the message is very very lengthy, जब बड़ा मैसेज हो जाएगा, then it is not suitable. वहां पे वो suitable नहीं होता है. नेक्स्ट वन इज इट कैन बी अफेक्टेड. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से रखना. दैट मीन्स नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैन बी अफेक्टेड. इसको अफेक्ट किया जा सकता है, यानी जानबूझ के उसमें कहीं छेड़छाड़ की जा सकती है. सो इट माइट कंसील द स्पीकर्स रियल इंटेंशन. ठीक है, दैट मीन्स नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैन बी अफेक्टेड. उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं, उसको प्रभावित कर सकते हैं. उस केस में क्या हो जाएगा, सो इट माइट कंसील द स्पीकर्स रियल इंटेंशन. तो स्पीकर का जो रियल इंटेंशन है वो उसको कंसील कर सकता है, उसको हाइड आउट कर सकता है, उसको छुपा सकता है, उसको मैनिपुलेट कर सकता है, उसको चेंज कर सकता है. ठीक है, तो देखो फीचर के जब भी हम लोग बात करते हैं, फीचर कंटेन्स बोथ थिंग्स, positive things and negative things. So this particular thing, this feature is no doubt one of the major negative point of non-verbal communication, that non-verbal communication may be affected. उसको अफेक्ट किया जा सकता है. तो उससे क्या होता है, स्पीकर की एक्चुअल इंटेंशंस का पता ही नहीं चलेगा. Why? Because he has concealed his actual intention. उसने अपनी एक्चुअल इंटेंशन को छुपा लिया, तो पता ही नहीं चलेगा कि एक्चुअल में उसका ओपिनियन क्या था, वो हमें पता ही नहीं चलेगा. ठीक है, इसी के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, वही वाला वीडियो में आपको दिखाता हूं कि कैसे यहाँ पे एक स्पीकर अपनी एक्चुअल इंटेंशंस को छुपा लेता है. ठीक है, एक हस्बैंड है जो कि जेल में है, वाइफ उससे मिलने आ रही है. ठीक है, और हस्बैंड देखो वाइफ के सामने कैसा रिएक्शन देता है. एक्चुअली ही इज कंसीलिंग हिज रियल इंटेंशंस. वो अपनी रियल इंटेंशंस को कंसील कर रहा है, छुपा रहा है. ठीक है, इसको देखिए, 2 मिनट का है मुश्किल से. ये दिख रहा है सबको? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ओके. ओके, तो यहां देखिए, एक्चुअली हस्बैंड वाज नॉट सेइंग एनीथिंग, ही वाज नॉट यूजिंग एनी वर्ड. वो कोई शब्दों के माध्यम से कुछ नहीं बोल रहा है. व्हाट वाज हिज रिएक्शन? हिज रिएक्शन वाज प्योरली नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. एंड व्हाट मैसेज ही वाज एक्चुअली ट्रांसमिटिंग टू हिज वाइफ, और जो भी थी वो उसको मैसेज क्या ट्रांसमिट कर रहा था, वो जो मैसेज ट्रांसमिट कर रहा था, द सेम थिंग वाज नॉट एक्चुअली, वो एक्चुअली दैट द सेम थिंग वाज नॉट गोइंग ऑन इन हिज माइंड. उस व्यक्ति के दिमाग में वही चीज नहीं चल रहा था. तो एक्चुअली उसने क्या किया, ही जस्ट अफेक्टेड द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. उसने अपनी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को अफेक्ट किया. दैट मीन्स ही हैज एक्चुअली कंसील्ड हिज रियल इंटेंशन. उसने अपने रियल इंटेंशंस को कंसील किया. ठीक है, मैनिपुलेट किया, मॉडिफाई किया, चेंज कर दिया. ठीक है, सो द एक्चुअल मैसेज वाज नॉट ट्रांसमिटेड. वहां पे एक्चुअल क्या है, फॉल्स मैसेज. वो औरत तो बेचारी सोच के कि ओ मेरे बगैर तो उसका बहुत बुरा हाल है. ठीक है, बट द सेम मैसेज वाज नॉट ट्रांसमिटेड. नाउ टेल मी, कोई ये नेक्स्ट ये 4, 5 और 6 इन 3 पॉइंट्स में किसी को कोई डाउट है? No, sir. No, No, sir. sir. Question है sir. किसी को किसी पॉइंट में डिस्कस करना हो, नहीं समझ में आया हो तो मुझसे पूछ ले, अदरवाइज आगे बढ़ते हैं. Sir, 6 वाला Sir, स्क्रीनशॉट लेना है.
स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। अगर इनकेस किसी का छूट भी जाता है तो मुझे पर्सनली व्हाट्सएप करके ये सब मांग सकते हैं, ठीक है। देखो इसको मैंने क्या लिखा है, इट कैन बी अफेक्टेड का मैंने एग्जांपल भी यहाँ दिया है कि पॉलिटिकल लीडर्स, आर्टिस्ट, ठीक है, बॉसेस एक्सेट्रा एक्सप्रेस इन डिफरेंट मैनर्स एंड सो रियल मीनिंग माइट बी कंसील्ड। जैसे आप लोग देखते हो ना पॉलिटिकल लीडर्स को, सर कई अमर का पॉलिटिकल माइक लीडर्स ऑन है। कई पॉलिटिकल लीडर्स क्या करते हैं, कई पॉलिटिकल लीडर्स जब भाषण दे रहे होते हैं उसी में लगेंगे रोने। लगता है कि बाप रे पब्लिक के लिए कितना ज्यादा ये लोग वो कर रहे हैं, क्या नाम है, कितना ये अफेक्टेड है, लगेंगे वही रोने। बट दैट क्राइंग माइट बी गुड, इट माइट बी रॉन्ग। इसका एक और बहुत ही अच्छा एग्जांपल समझ लो कि सपोज एक एक्टर है या एक्ट्रेस है, आप लोग अपने अपने बेस्ट एक्टर या बेस्ट एक्ट्रेस को अपने दिमाग में सोच लो, ठीक है। और उस एक्टर को कि आज 2 अपॉइंटमेंट है या उस एक्ट्रेस की आज 2 अपॉइंटमेंट है, जो भी आपका फेवरेट एक्टर है उसकी 2 अपॉइंटमेंट है, ठीक है। एक दिन को 12 बजे है, एक रात मान लो शाम को 6 बजे या 7 बजे है, ठीक है। दिन में उसका क्या क्या है कि उसको जाना है किसी, सपोज किसी का फ्यूनरल है, किसी का डेड बॉडी जा रहा है या मान लो जा चुका है, उनके घर पे जाना है केवल सांत्वना देने, ठीक है। और दूसरे शाम को जो 6 बजे है या 7 बजे है, वो क्या है, वो उसको एक बर्थडे पार्टी में जाना है। सेम पर्सन, एक ही दिन, 2 अलग अलग चीज, ठीक है। तो वो पहले वाले में जब जाएगा, फर्स्ट वाले पार्ट में, तो जो पर्सन मरा है वो इससे कोई लेना देना नहीं है, इस एक्टर का, आपके फेवरेट एक्टर या फेवरेट एक्ट्रेस का उससे कोई लेना देना नहीं है। हो सकता है उसको उसने जिंदगी में कभी देखा भी ना हो, बट क्योंकि उसको पैसे मिले हैं वहां आने के लिए, वो वहां जाएगा। कैसे जाएगा, बेसिकली ही विल बी वियरिंग अ लाइट कलर ड्रेस, वो हो सकता है व्हाइट कलर की ड्रेस वहां पर पहुंच जाए, ठीक है। और वहां जाके उदास रहेगा, ठीक है। इनफैक्ट बहुत बड़ा एक्टर होगा तो रोने भी लगता है, हो सकता है 1-2 बूंद गिरा भी दे, ठीक है, कि वो बहुत अच्छे आदमी थे चले गए, ठीक है। नाउ दैट सेम पर्सन जब शाम को वो बर्थडे पार्टी में जाएगा, तो वो उसकी ड्रेस क्या वही व्हाइट वाली होगी? नो, एक कलरफुल ड्रेस खूब बढ़िया वहां पहन के जाएगा। और इवन वहां पे वो क्या कर सकता है, इवन ही माइट सिंग, ही माइट डांस, वहां हो सकता है कि वो खूब नाचे गाए भी, ये भी कर सकता है, बिकॉज ही इज बेसिकली पेड फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पस। उस पर्पस के लिए उस एक्टर को पे किया गया है, ठीक है। तो सेम एक्टर, the response was different in afternoon and his reaction was entirely different in the evening. Why? Because he's affecting his non-verbal communication, he's affecting he's concealing his real intentions. उसका real intention जो है वो बार बार कंसील कर रहा है, उसके साथ छेड़छाड़ कर रहा है, ठीक है। पैसा मिला तो रोने भी चला गया, पैसा मिला तो हंसने भी चला गया, सेम डे, ठीक है। यहाँ पे किसी ने शायद पॉइंट नंबर 5 कहा है, सीधा सीधा है कि व्हेन द लेंथ ऑफ द मैसेज, जब कोई बहुत बड़ी बात कहनी हो या लेंदी मैसेजेस कहना हो, तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से पॉसिबल नहीं है, ठीक है। जैसे मैं ही आपको बोल रहा हूं कि यहाँ से सपोज आपको यहाँ से डीएवी जाना है, लंका से सपोज डीएवी जाना है, तो मैं आपको वर्बल कम्युनिकेशन से आसान से समझा सकता हूँ कि नॉन वर्बल, वर्बल, बिकॉज वहां पे लेंदी मैसेज होगा। मैं बोलूंगा कि यहाँ से टेम्पो पकड़ो, कैंट जाओ, कैंट से फिर ऑटो पकड़ो और लोहटिया उतर जाओ, फिर लोहटिया से पैदल होते हुए जाओ। तो since the message was very lengthy, so in that particular case we should use verbal communication, or verbal communication is more effective. But for lengthy messages, basically non-verbal communications are not suitable at all. वो बिल्कुल प्रयोग में नहीं आते हैं या उनका उपयोग हो ही नहीं सकता है, ठीक है। केवल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की सहायता से लेंदी मैसेजेस हम लोग ट्रांसमिट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। किसी को डाउट है? नो सर। चलो ठीक है, No, आगे sir. बढ़ते हैं। No, चलो sir. आगे बढ़ते हैं। नाउ साइन लैंग्वेजेस, जैसे मैंने कई लोगों से पूछा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विजुअल साइन और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑडियो साइंस, ठीक है। कई बच्चों ने मुझे वो किया था कि सर ऑडियो विजुअल में तो ये आता है। देखो यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये बच्चों हमेशा ध्यान रखना। व्हेन योर कॉन्सेप्ट विल बी क्लियर, जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो बाकी डेफिनेशंस के अलावा को रटने की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल डेफिनेशंस को रटने की जरूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बिल्कुल अपने वर्ड्स में आप लोग चीजों को लिख सको। देखो यहाँ पे वर्ड ऑडियो कम्युनिकेशन और विजुअल कम्युनिकेशन का बेसिकली मतलब होता क्या है, ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं। देखो साइन लैंग्वेजेस बेसिकली ऑडियो एंड विजुअल, सॉरी विजुअल एंड ऑडियो साइंस
they both are basically the categories of sign languages. But what is the meaning of sign language? ये हम लोग देखते हैं. Sign languages are a kind of non-verbal communication. यहाँ सीधा non-verbal communication हमने कह दिया, that means words are not used at all. जैसे ही हम लोग कहते हैं कि साइन लैंग्वेज एक प्रकार का नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, तो सीधा इसका मतलब क्या है कि शब्दों का प्रयोग, वर्ड्स का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं होगा, होगा ही नहीं. ठीक है. नाउ sign languages are a kind of non-verbal communications where the messages are transmitted without using the words, and they directly affect the sense of our hearing and the sense of our seeing. Basically, the sign languages affected two important body senses. हमारे बॉडी के टू इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन्स को वो लोग अफेक्ट करते हैं. किसको? दे डायरेक्टली अफेक्ट द सेंस ऑफ आवर हियरिंग. हमारे सुनने की जो क्षमता होती है उसको वो डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं. ठीक है. और दूसरा द सेंस ऑफ आवर सीइंग, हमारा देखने का जो नजरिया होता है, देखने के जो तरीके होते हैं, डायरेक्टली उसको अफेक्ट करता है. ठीक है. चलो इसको कैसे देखते हैं, इसको कैसे कैसे अफेक्ट करता है, इसको हम लोग देखते हैं. देखो, विजुअल साइंस, बेसिकली साइन लैंग्वेजेस आर ऑफ two categories, or the sign languages may be further divided into two important parts. That is, number one is visual sign and number two is audio sign. ये दो प्रकार के sign languages होते हैं. Now first one, visual sign. Facial expressions, gestures. That means gesture means movement of head, hand, leg to express an idea or feeling. Gestures का मतलब कि हेड की सहायता से, हैंड्स की सहायता से, लेग्स की सहायता से कुछ एक्सप्रेस करना. जैसे आप मेरी बात से सहमत अगर होते हैं तो ये दिस इज योर जेस्चर. दैट मीन्स by movement of head you are basically giving me or basically you are communicating with me. You are saying or you are transmitting certain messages to me. ठीक है. और मोस्ट ऑफ द केसेस में आप लोग मुझसे सहमत नहीं होते हैं, तो वहां पे क्या होगा? मैं कुछ भी पढ़ा रहा हूं, आप लोग, दैट मीन्स योर जेस्चर इज यू विद द मूवमेंट ऑफ हेड यू आर कंप्लीटली डिनाइंग माय वर्ड्स. आप लोग मेरे वर्ड्स को सीधा डिनाई कर दे रहे हैं कि नो, दैट इज नॉट ट्रू. तो दिस इज जेस्चर, इट इज अ काइंड ऑफ विजुअल साइन. नाउ हैंड्स की सहायता से भी, जैसे मैंने बताया कि खातिरदारी करिए, तो ये क्या है? मूवमेंट ऑफ हेड दैट ट्रांसमिट अ वेरी क्लियर कट मैसेज. वो सीधा सीधा दे रहा है. और भी कई चीजों में होते हैं हम लोग, स्टॉप, इस टाइप की मूवमेंट. लेग्स की सहायता से भी कई लोग भाई जो वो लोग अपनी एक्सप्रेस फीलिंग को या आइडिया को एक्सप्रेस करते ही हैं. सो फेशियल एक्सप्रेशंस, जैसे दांत दिखा देना, दैट मीन्स आपको वो चीज अच्छी लगी. थोड़ा मुंह ऐसे बनाना कि क्या पढ़ा रहे हैं भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पढ़ा रहे हैं सब ऊपर से जा रहा है. ठीक है. तो फेशियल एक्सप्रेशन विल बी लाइक दिस. तो लार्ज नंबर ऑफ फेशियल एक्सप्रेशंस आर देयर, बट दे आर ए काइंड ऑफ विजुअल साइंस. दे क्लियरली इंडिकेट अ मैसेज. वो बिल्कुल क्लियर कट एक मैसेज को इंडिकेट करते हैं. नाउ प्रिंटेड पिक्चर्स, कुछ पिक्चर्स जो प्रिंटेड होती हैं, वो यहां ध्यान रखना कि ऑल दीज एग्जांपल्स, इन ऑल दीज एग्जांपल्स वर्ड्स आर कंप्लीटली एब्सेंट. ये जितने भी मैं एग्जांपल दे रहा हूं, आप ये मत कहना कि सर प्रिंटेड पिक्चर में तो लिखा भी होता है. अरे भैया, तो हम उसको एग्जांपल नहीं ले रहे हैं, हम उस प्रिंटेड पिक्चर को एग्जांपल ले रहे हैं जहां पे बिल्कुल भी वर्ड्स का नहीं यूज हो रहा है. मैं भी आपको दिखाऊंगा कि प्रिंटेड पिक्चर्स कैसे. फॉर एग्जांपल मैं वो दिखाऊंगा अगली स्लाइड में. रोड साइंस, जैसे आप लोग देखते हो ना, एरो बना होता है, लेफ्ट, यहां से लेफ्ट मुड़ जाओ, वहां से राइट मुड़ जाओ, सीधे जाओ, ऐसे एक यू कर्व है, तो वहां पे लिखा नहीं होता है कि आगे जाओ, इधर मुड़ो, आगे जाओ, उधर मुड़ो. नो, नथिंग इज रिटन. सिंपली रोड साइंस आर देयर. वो रोड साइंस आप देख के समझ जाते हैं कि हमें किधर जाना है. ठीक है. नाउ ट्रैफिक सिग्नल्स, बिल्कुल उसमें भी कुछ नहीं लिखा रहता है. ऑल फॉल अंडर विजुअल साइंस. व्हाई? बिकॉज they are directly related to our sense of seeing. That means merely by seeing those kind of things, a message is transmitted to our brain or to ourselves. उसको देखते ही एक मैसेज हमें ट्रांसमिट हो जाता है. ठीक है. एक सीधा वर्बल कम्युनिकेशन हमें ट्रांसमिट होता जा रहा है merely by seeing those things. ठीक है. those things directly affect the sense of our seeing. हमारी जो देखने की समझ है उसको वो डायरेक्टली अफेक्ट करता है. merely by seeing those things it directly communicates a message to our body or our brain. वो तुरंत एक मैसेज कम्युनिकेट कर देता है कि ये कहना क्या चाहता है.
ठीक है, वो उस शब्द की सहायता से, वो उस प्रिंटेड पिक्चर के द्वारा, उस रोड साइन के द्वारा, उस ट्रैफिक सिग्नल के द्वारा, उस फेशियल एक्सप्रेशन के द्वारा, उस जेस्चर के द्वारा, व्हाट ही इज एक्चुअली ट्राइंग टू से, the thing is directly affected or it is directly concerned with our sense of seeing. That means merely by seeing those things we can have the actual information कि वो कहना क्या चाह रहा है. फॉर एग्जाम्पल यहां देख लेते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ विजुअल साइन. जैसे ये जो रेड में मैंने लिखा है ये कंप्लीटली एब्सेंट है, मान लो ये लिखा मैंने है ही नहीं, ठीक है, ये प्रिंटेड पिक्चर है, ठीक है, तो व्हाट विल बी द मैसेज विच विल बी ट्रांसमिटेड टू यू. अगर केवल एक ऐसा प्रिंटेड पिक्चर हो, एक हड्डी टाइप का हो, स्केलेटन, और उसमें ऐसे 2 क्रॉस मार्क बने हो, दैट मीन्स डेंजर. इसको देखते ही आप समझ जाते हो कि यह डेंजर वाली चीज है, ठीक है. जैसे दूसरा ये, ठीक है, इसका मतलब इसको देखते ही सेंस ऑफ सेइंग, देखते ही आपकी सेंस को क्या मैसेज ट्रांसमिट होता है, नो स्मोक प्लीज, प्लीज डू नॉट स्मोक, वो मैसेज ट्रांसमिट होता है, ठीक है. मान लो ये कहीं पे पिक्चर बना हुआ है, ये किसी चौराहे पे बना हुआ है या किसी स्कूल में बना हुआ है, कहीं पे भी, तो उसका सीधा मैसेज क्या ट्रांसमिट होता है, आपकी सेंस ऑफ सीइंग. जैसे ही आपने देखा, व्हाट वाज ट्रांसमिटेड, व्हाट मैसेज वाज ट्रांसमिटेड टू यू, नो हॉर्न प्लीज, प्लीज डू नॉट ब्लो हॉर्न, इस टाइप की मैसेज जाती है. ये मैसेज आप देखते ही, ये रोड पे चलते हो तो ये देखते ही क्या समझ में आता है, जेब्रा क्रॉसिंग, दैट मीन्स प्लीज स्लो डाउन, ठीक है, स्पीड थोड़ी स्लो करो भैया, वो वहां क्रॉसिंग वगैरह कुछ है, ठीक है. सो बेसिकली दीज विजुअल साइंस, merely by seeing these pictures, merely seeing by these signs, a message is basically communicated to our body or our brain. एक मैसेज ट्रांसमिट होता है, ठीक है. तो विजुअल साइंस करते क्या है, दे बेसिकली डायरेक्टली अफेक्ट, दे आर डायरेक्टली कंसर्न्ड, दे आर डायरेक्टली कनेक्टेड विथ द सेंस ऑफ आवर सीइंग. वो हमारे सीइंग के सेंस से, जैसे 5 सेंस ऑर्गन्स है ना, तो सीइंग के देखने की क्षमता जो होती है, देखते ही समझ में आ जाता है कि ये मैसेज है क्या. नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस, इसको थोड़ा समझ लो, अच्छा है. यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल, दैट मीन्स दीज विजुअल साइंस आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल. जैसे व्हाई दे आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल, बिकॉज दे आर फ्री फ्रॉम लैंग्वेज लोड, दे कैन बी अंडरस्टूड इजिली. ये लैंग्वेज लोड से नहीं, जैसे चाइना में भी अगर ये बना होगा तो चाइनीज क्या समझेगा, वो ये नहीं समझेगा कि बहुत अच्छा रास्ता है चलो, नहीं, डेंजर. एक चाइनीज या अमेरिकन या इंडियन, ये कोई भी इस साइन को देखेगा तो वो यही मतलब समझेगा कि नो स्मोक प्लीज, बिकॉज इट इज फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ लैंग्वेज. इसमें कोई लैंग्वेज नहीं है, दीज आर सिंपली साइंस, दीज आर डायरेक्टली अफेक्टिंग योर सेंस ऑफ सीइंग. Since they are free from any kind of language load, ये language load से बिल्कुल free होता है, that's why it is universally acceptable. Now these are suitable only for simple and short messages. जैसा मैंने वहां पिछली बार कहा था कि lengthy messages में ये सब useful होते ही नहीं है, non-verbal communication. Same thing is here कि the visual signs they are suitable for simple and short messages. Simple messages के लिए ही ये ज्यादा effective होते हैं या ज्यादा प्रयोग में होते भी हैं. Now they are often used in combinations with other media. Basically non-verbal communications का हम लोग other media के साथ भी use करते हैं. जैसे अब आप लोग जो भी समझ लो, in advertisements, in radio, in large number of things, और in posters, जैसे danger ये बनाने के अलावा भी लिख दिया जाता है danger, ठीक है. So in those kind of things, both the non-verbal element plus other things are also possible. So this kind of visual images, they are basically used in combination with other media. वो दूसरे के साथ प्रयोग किया जाता है, ठीक है. Now next one, audio signs. What is the meaning of audio signs? The audio signs are also a kind of sign languages or a kind of non-verbal communication. That means they do not use words at all. Words are completely silent. Audio signs में words का, शब्दों का प्रयोग होता ही नहीं है. तो ये होता कैसे है, द ऑडियो साइंस डायरेक्टली अफेक्ट द सेंस ऑफ आवर हियरिंग. जैसे ही कोई स्पेसिफिक आवाज हमारे कान में जाती है, तुरंत वो आवाज हमारे दिमाग को एक मैसेज ट्रांसमिट कर देता है, दैट व्हाट दिस पर्टिकुलर ऑडियो इज ट्राइंग टू कम्युनिकेट, व्हाट इज द एक्चुअल मैसेज विच दिस पर्टिकुलर ऑडियो इज ट्राइंग टू कम्युनिकेट. ये कहना क्या चाहता है, वो तुरंत आपके दिमाग में कम्युनिकेट हो जाता है, ठीक है. वर्ड्स आर नॉट ट्रांसमिटेड, बट merely by hearing that particular word, the sense of our hearing
ट्रांसमिट अ मैसेज टू आवर ब्रेन, वो तुरंत सुनते ही एक बेर है। फॉर एग्जाम्पल, हुटर्स फिटेड ऑन द टॉप ऑफ एम्बुलेंस, एम्बुलेंस की हुटर सुनते ही, जैसे ही जो भी हुटर बजता है, मैं तो बजा नहीं पाऊंगा, जैसे ही बजता है वो क्या होता है, जो भी लॉजिकल बंदा होगा वो रास्ता दे देगा। सायरन्स इन फैक्ट्रीज, फैक्ट्रीज की सायरन बजते ही क्या हो जाता है, वर्कर्स को पता चल जाता है कि इट इज फ्री टाइम नाउ, और वर्क हैज स्टार्टेड और वर्क हैज स्टॉप एक्सेट्रा। वो सायरन सुनते ही समझ जाते हैं। वो तेजी से बोला नहीं जाता है कि काम बंद करो, काम बंद करो, नो, merely by hearing the siren a message is transmitted to the वो। now alarm clocks, अलार्म क्लॉक जो भी लगाता है वो तुरंत वो समझ जाता है कि सुबह उठने के लिए है या कहीं जाने के लिए है। डोर बेल्स, डोर की बेल बजती है तो क्या आप लोग सोचते हो कि घर का कोई बंदा बाहर जा रहा है? नहीं, समवन इज वेटिंग फॉर यू एट द डोर, मैसेज क्लियर होता है कि समवन इज वेटिंग। वैसे ही बेल्स इन स्कूल्स, घंटी लगते ही, पुराने दिनों की याद करो, 12th में जब आप लोग पढ़ते थे, घंटी लगते ही भागते थे, टीचर शायद वहां पे खड़ा भी रहता हो, बस कुछ लोग निकलना शुरू हो जाते थे। नाउ टेलीफोन रिंग्स, लोग यहाँ बोलते हैं कि सर हम लोग तो लगाते हैं, गानों को लगाते हैं। नो, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर रिंग, वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रिंग ट्रिंग एक्सेट्रा। टेलीफोन रिंग, जो ट्रिंग ट्रिंग बजती है, दैट मीन्स क्लियर समवन इज रिंगिंग, है ना, समवन वांट्स टू टॉक विथ यू, द मैसेज इज वेरी क्लियर। 1 मिनट और लूंगा आप लोग का। व्हाट आर द एडवांटेजेस? दे रीच द टारगेट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, अपने टारगेट जोन को वो इमीडिएटली वो कर देता है। जैसे अगर एम्बुलेंस मान लो लंका पे बज रहा है, तो उसका टारगेट जोन लंका वाला एरिया है। एम्बुलेंस अगर लंका पे बज रहा है तो वो डीएवी का एरिया खाली नहीं कराना चाहता है। दैट मीन्स इट्स टारगेट जोन इज वेरी क्लियर एंड द वॉइस और द पर्टिकुलर साउंड रीच इट्स टारगेट जोन इमीडिएटली। जब आवाज जाती है तो एम्बुलेंस जिन लोगों को हटाना चाहता है वहां तक उसकी आवाज बिल्कुल क्लियर पहुंच जाती है। ठीक है, क्योंकि उसका टारगेट जोन बहुत लंबा नहीं होता है, शॉर्ट में होता है, और वो अपने टारगेट जोन को इमीडिएटली पहुंचती है। नाउ नेक्स्ट, इमीडिएट मैसेज टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। ठीक है, वो मैसेज जो ट्रांसमिट होता है लार्ज नंबर ऑफ पीपल, जैसे अगर बेल इन स्कूल बज रही है तो लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के लिए बज रही है, वो किसी एक बच्चे को नहीं बोल रही है कि तुम जाओ बाकी सबको बैठने दो, नहीं, बेल बजते ही सारे लोगों को मैसेज। दैट मीन्स सच काइंड ऑफ थिंग्स, दे आर द इमीडिएट मैसेज इज ट्रांसमिटेड टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल। नेक्स्ट, इट इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल, इट इज ऑल्सो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल, ये भी मोर और लेस यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल होता है। अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, अदरवाइज इसको एंड करते हैं। नो सर। चलो, वेरी गुड। नो सर।